Good morning, dear students. This is the second section of the lesson for the treasure within. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. वह संयोग से वास्तुकार बने, आर्किटेक्चर, क्योंकि वह बहुत कम फ्रेंच जानते थे, न के बराबर, और जर्मन भी कम जानते थे। और दूसरों वो मजाक जो दूसरों के साथ है दूसरों किया करते थे, उस मजाक से भी अभिरुचि इनकी जाती रही। अब अपना व्यवसाय मिल गया उनको। उन्होंने अपना व्यवसाय जब उन्होंने अपना व्यवसाय ढूंढ लिया तो फिर पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। How did you get into the field of architecture? In the college for architecture, nobody who had not below 85% was allowed to enter. I had only 50%. I wanted to join the army. I got my admission later, but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. My mother said, "Don't join the police force. Just do your graduation." And so I went to Jai Hind College in Bombay. There I was to either take French or German, though I had studied French for 7 years. I didn't know even 7 words of French, so I took German. Then my German teacher died. The college told me that I could change the college or take French. Now, who would give me admission in another college? I had got admission to Jai Hind by influence. So I thought, okay, I will take French, and I started learning French again. I learned it from my cousin. She was an architect's wife. I was going to be an architect's office to learn French. आपने कैसे भवन निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश किया? तो भवन निर्माण कॉलेज में वैसे कोई नहीं जो जिनका 80 और 85% मार्क नीचे था, तो उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। मेरा तो 50% मात्र नंबर था, तो मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था। तो मुझे एडमिशन प्रवेश पत्र मुझे मिला, लेकिन मेरी चाची ने इस प्रवेश पत्र को फाड़ दिया। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं अब पुलिस बल में ज्वाइन करना चाहूँगा, पुलिस बल। तो मेरी माँ ने कहा कि पुलिस बल में ज्वाइन मत करो, अपना ग्रेजुएशन करो।
इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज मुंबई चला गया। वहाँ जर्मन या फ्रेंच मुझे लेना था। हालांकि मैंने 7 वर्ष फ्रेंच का अध्ययन किया, लेकिन मैं 7 शब्द भी फ्रेंच का नहीं सीख पाया, नहीं जान पाया, इसलिए मैंने जर्मन लिया। तब मेरे जर्मन टीचर मर गए, तो कॉलेज ने मुझे बताया कि आप कॉलेज बदल सकते हैं या फ्रेंच ले सकते हैं। अब दूसरे कॉलेज में मुझे एडमिशन कौन देगा? मुझे तो जय हिंद कॉलेज में प्रभाव से एडमिशन मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं फ्रेंच ही लूँगा। और मैंने फिर फ्रेंच सीखना शुरू किया। तो मैंने अपने चचेरी बहन से फ्रेंच सीखा। वह एक वास्तुकार की पत्नी थी, मेरी बहन, चचेरी बहन। तो मैं आर्किटेक्ट, वास्तुकार के ऑफिस, वास्तुकला के ऑफिस में जा रहा होता था फ्रेंच सीखने के लिए। बेला राजा, was it then that you decided you wanted to do architecture? Actually, it's all happened quite by chance. In the architect's office, I saw somebody drawing a window detail. A window detail is a very advanced drawing. I told him that this drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. He then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband, surprised, he asked me to draw a few specific things, which I immediately did. He asked me to design a house, and I designed a house. After that, he told me to drop everything and join architecture. He went to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you don't do well, I will not allow you to join. I got an A plus in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk. I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. I stood first class, first throughout. After that, I believe that all this understanding came from what I used to play and do during the school. I had a friend called Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts, guns, and ammunition. Each of us would design something in an effort to be different. In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect." I didn't know at the same time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her.
तो क्या आपने निर्णय लिया था कि आप ऐसा निर्णय लिया था कि आप हाँ वास्तुकार बनना चाहते हैं? वास्तव में यह सब संयोग से घटित हुआ। आर्किटेक्ट के ऑफिस में, वास्तुकार के ऑफिस में मैं किसी को विंडो खिड़की बनाते हुए देखा था, डिजाइनिंग करते हुए। तो एक विंडो बनाना बहुत ही प्रगतिशील ड्राइंग है। मैंने उसे कहा कि उसकी ड्राइंग गलत है, क्योंकि जो खिड़की का जो उसने बनाया है वो कभी नहीं खुलेगी। तो उसने मुझसे बाजे लगाए और बाद में उसने पाया कि सचमुच है उसका ड्राइंग गलत था। तो मेरी चचेरी बहन के हस्बैंड को बहुत आश्चर्य हुआ यह सुनकर। तो उन्होंने मुझे कुछ विशेष चीज़ें बनाने के लिए कहा, ड्राइंग करने के लिए कहा, जिसको मैंने तुरंत करके बना दिया। तो उन्होंने मुझे एक घर डिज़ाइन करने के लिए कहा, मैंने एक घर भी डिज़ाइन कर दिया, ड्राइंग कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे हर चीज़ बस बंद करने के लिए कहा और कहा कि आर्किटेक्चर माने वास्तुकला में ज्वाइन करने की सलाह दी। और हम लोग कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने हम लोग गए। तो प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं अलाउ करूँगा तुम्हें एग्ज़ाम देने से, अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दूँगा। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे A+ मिला उस दिन। और इसके बाद तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया, केक वॉक हो गया। तो मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मैं जानता था कि कोई भी चीज़ कैसे दिखाई पड़ता है टॉप से, ऊंचाई से। तो मैं कभी नहीं जान पाया था कि खंड क्या होता है, लेकिन मैं जानता था कि अगर एक प्लान को काटा जाए, अगर आप काटे तो यह किस तरह दिखाई पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट आया उसके बाद। और मैं विश्वास करता हूँ कि यह सब समझदारी उस चीज़ से आई मुझ में जो मैं स्कूल के दौरान खेलने में या कोई काम करने में जो मैं खेलता था, जो काम करता था, उससे यह समझदारी मुझे आई थी। तो मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम बेहरम डिवेचा है। हम लोग को कंपटीशन हुआ करता था हम दोनों मित्र के बीच में, किला, बंदूक, हथियार को डिजाइनिंग करने का, ड्राइंग करने का। और हमेशा किसी न किसी चीज़ का डिजाइन करते थे और प्रयास करते थे जो भिन्न हुआ करता था। तो स्कूल में जब मैं 2री या 3रे क्लास में था तो मेरी एक शिक्षिका मिसेज गुप्ता थे, जिसने मेरे चित्र को देखा, स्केचिंग को देखा और स्केच को देखा और मुझे बताया कि तुम तो ऐसे हर चीज़ में तुम बेकार हो, लेकिन तुम्हारा स्केचिंग बहुत अच्छा है। जब तुम सियाने होगे तो तुम एक वास्तुकार बनोगे। और मैं नहीं जानता था उस समय कि जो वह कहती है वो सही है। बाद में आर्किटेक्ट बनने के बाद मैं उस शिक्षिका से मिलने और उसे यह बात कहने के लिए गया वापस। बेला राजा, why do you think that you didn't like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? Yes, see, I was very bad at languages. Science and geography I could deal with. Maths was very bad.
I just was not interested. I was studying for the sake of studying. What they taught me today, I would forget after 2 days. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. Did you think that what they taught in English was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? Yes, living in a boarding school is difficult. We were just living from day to day. Nowadays, there are so many tests. Back then, whenever we had tests, we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. There is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? I say, well, take some students from my class. Those who always stood first or second are today doing very ordinary jobs. I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. आप क्यों सोचते हैं कि आप पढ़ाई पसंद नहीं करते थे? क्या यह कारण था कि आप अपने पाठ्यक्रम के साथ चल नहीं सकते थे या डील नहीं कर सकते थे? मैं भाषा में बहुत ही कमज़ोर था। साइंस और ज्योग्राफी यानी विज्ञान और भूगोल मैं तो डील कर सकता था, लेकिन मैथ बहुत ख़राब था और जस्ट मुझे अभिरुचि भी नहीं थी और मैं पढ़ने के वास्ते पढ़ता था और जो बातें उन लोगों ने मुझे पढ़ाया उन्होंने, मैं 2 दिन के बाद भूल गया। मैं भूल जाता था जो कुछ भी वो पढ़ाते, आज जो पढ़ाते थे 2 दिन के बाद मैं भूल जाता था। तो मैंने कभी प्रयास नहीं किया, कष्ट नहीं उठाया, क्योंकि उसमें जब वो न्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिया, क्योंकि इसमें कोई माइंड लगाने में भी कष्ट होता था शुरू से ही मुझे ब्रेन अप्लाई करने में। उसमें बहुत ब्रेन अप्लाई करना पड़ता था उसमें, उस विषय में। क्या आप सोचते हैं क्या आप सोचते थे कि स्कूल में जो वे पढ़ाते थे वो ज़रा बोरिंग था, उबाऊ था, या क्या आप अनुभव करते थे कि एक बार अगर आप जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपकी अभिरुचि बिल्कुल उस बाद बाकी लेसन के साथ ख़त्म हो जाती थी? बोर्डिंग स्कूल में रहना तो बहुत कठिन है। हम लोग दिन पर रह रहे थे, एक दिन गिन करके रहते थे। अब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जांच होती हैं, परीक्षाएं होती हैं। जब कभी हम लोगों को टेस्ट हुआ करता था, परीक्षा होती थी, तो हम लोग नकल करते थे और टीचर सोचते थे कि हमने अपना काम किया है ईमानदारी से। लेकिन ऐसी कोई स्वीकृति नहीं है कि आगे प्रतिभा या सीखने की असक्षमता साथ साथ चलती है। ऐसा स्वीकारा जाता है कि प्रतिभा और सीखने में असमर्थता दोनों साथ साथ चलती है। क्या आप सोचते हैं कि यह आप पर लागू होता है? यस। कुछ विद्यार्थी को लीजिए, मेरे क्लास के विद्यार्थी को, वे जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड आते थे, आज वे बहुत ही साधारण काम करते हैं। और मैंने ऐसी स्थिति देखी है
बहुत सारे स्थानों पे जहाँ लोग मुझे कहते हैं कि उनके क्लास टॉपर बहुत ही साधारण काम कर रहे हैं। तो हाफिज कंट्रैक्टर स्कूल में इन स्कूल आई थिंक लिविंग our lives are made us street smart. I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. हाफिज कंट्रैक्टर हूँ। विद्यालय में मैं सोचता हूँ कि अपना जीवन जीने से मुझे तो बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया हमें। मैंने सीखा है, कुछ करके सीखा है। बहुत कुछ मैंने जो कि अध्ययन करने के बजाय जो विद्यालय मुझे सिखलाता था, तो उसके बजाय मैं कुछ करके मैं सीखता था। बहुत मतलब स्मार्ट बना, तेज बना। Bela Raja, that is because the personality and skills were there. You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. I was more interested in other things. If, for example, while in class, it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get fast dinner with a full neat uniform, and after that it didn't matter. इसका कारण है कि व्यक्तित्व और कुशलता वहाँ मौजूद थे। आप अपने ढंग से अभिव्यक्ति ढूंढने में सक्षम थे, जिस ढंग से आपको सहूलियत होती थी। और आपने रूल भी तोड़ा ताकि कोई नहीं, जैसे आपको कोई रोकता भी नहीं था आपको वो चीज़ करने से जो आपको करने की ज़रूरत थी। मैं अन्य बातों में तो मुझे ज़्यादा दिलचस्पी थी। उदाहरण के लिए क्लास में मैं जैसे बरसना शुरू हो गया तो मैं बहते पानी के बारे में सोचता था कि इस बहते पानी को रोकने के लिए इस पर बांध कैसे बनाया जाए, डैम कैसे बनाया जाए। तो मैं सोचता रहता था उस बहते पानी के बारे में, डैम के नीचे, और कितना पानी एक डैम के अंदर आएगा। तो यह सब उस दिन मेरी मन अभिरुचि की बात हुआ करती थी, सोचता था मैं। और जब विद्यार्थी बटन खो देते थे खेलने के दौरान या लड़ाई झगड़े के दौरान, तो वे दौड़े दौड़े मेरे पास आते थे। तो मैं चौक से उनके लिए एक बटन काट कर बना लेता था, ब्लेड इस्तेमाल करके। स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण था और कोई विद्यार्थी बिना एक बटन भी मिस नहीं कर सकता है। तो ये अनुशासन में आता था कि बटन कोई टूटे नहीं होने चाहिए।
और विद्यार्थी फिर डिनर में नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहन करके जाते थे। इसके बाद फिर इसका कोई महत्व नहीं होता था। Coming to the present, how do you decide as to what kind of a structure you want to give a client? I look at the client's face, his clothes, and the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know that his taste would be like. I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in office. You do it instinctively. अच्छा, वर्तमान पॉइंट पर आए। आप कैसे निर्णय लेते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर ढांचा आप अपने ग्राहक को देना चाहते हैं? आप कैसे निर्णय लेते हैं? तो मैं ग्राहक के चेहरे, उसके कपड़े और उसके बात करने के ढंग को मैं देखता हूँ और उनके बोलने की उच्चारण को देखता हूँ। तो किस ढंग से वो खाता है, और तो मैं जान जाता हूँ कि उसकी रुचि किस तरह की होगी, किस तरह की। तो मैं उस तरह से मैं लोगों को रिलेट कर सकता हूँ जो उसके लिए सहूलियत हो, कंफर्टेबल हो। तो मैं एक साथ पेपर पर स्केच करता हूँ ऑन द स्पॉट, और इसके बाद वह पेपर जो अपने लोगों को मैं देता हूँ ऑफिस में। तो क्या यह आप स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं? क्वालिट इंस्टिक्ट, यह इसको स्वाभाविक रूप ही कह लीजिए। क्वालिट अर्थमेटिक, whatever now it comes to be like mathematics, putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor had derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject we now love dealing with. यह स्वाभाविक कह लीजिए, इसे अंक गणितीय पद्धति कह लीजिए, अंक गणित कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए। ये पहले तो यह मैथमेटिक्स की तरह मेरे पास आता है। इसके बाद डिजाइनिंग रखता हूँ, कंस्ट्रक्शन रखता हूँ, इसमें मनोविज्ञान रखता हूँ, समाजशास्त्र रखता हूँ, फिर एक साथ स्केचिंग बनाना, उससे यह भी एक मैथमेटिक्स है। तो हम लोग अब फुल सर्किल में आ जाते हैं, फिर वहीं घूम के आ जाते हैं कि जहाँ से मैथमेटिक्स की व्याख्यान से मिस्टर कंट्रैक्टर ने शुरू किया था, और फिर टेकिंग फ्रॉम सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से वो घृणा करते थे, आज बड़े प्यार से उसी सब्जेक्ट का निर्वाह करते हैं। नाउ इन comprehension checker, there are some questions that need to be answered. Number 1, Hafiz Contractor wanted to join the police force. Police force, why didn't he? He didn't join the police force because his mother wanted him to do the graduation instead of joining the police force. In the architect's office, Hafiz Contractor was advised to drop everything and join architecture. Why? Hafiz Contractor had a natural talent for architecture. In the architect's office, he was asked to draw some few specific things. He drew them immediately. Then he was asked to design a house. He did this too. Then
architect was impressed. He advised him to drop everything and to join architecture. Number 3. What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz contractor? So Mrs. Gupta advised Hafiz contractor to be architect when he grew up. What made her advise himself? Though Hafiz contractor was not good at studies, he was very good at drawing sketches. Mrs. Gupta thought it was wonderful. This made her advise himself. How did he help fellow students who had lost a button? His fellow students who had lost a button would come to him. Hafiz contractor was an expert. He made a button out of a piece of chalk. Then button looked like a wheel, and the student would get past dinner with a full neat uniform. Which rule did he break as a schoolboy? Whenever there was a test, Hafiz contractor used to copy. It was against the rule. It was cheating. What is Hafiz contractor's definition of mathematics? Hafiz contractor has defined mathematics, putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that. How would you want to define mathematics? Do you like the subject? I would define mathematics as a law that the existence of this universe, from the tiny electron to largest star. I like this subject. This is the end of your chapter. Thanks.